Hello friends, today we have again come up with a new video of chapter number 4, Carbon and its Compounds, class 10th, Chemical Properties of Carbon Compounds. What we have to discuss in this topic is which carbon which which chemical properties of the carbon compounds, like how carbon react with other elements, other components. First of all, we are going to study about combustion. So what is combustion is a process in which carbon or any allotrope of carbon react with oxygen, full amount of oxygen, to produce carbon dioxide and water. In any combustion process, if oxygen is available in full quantity, then only carbon dioxide and water is produced with the evolution of large amount of heat and light. So let's discuss the reaction. So what is the combustion reaction? Carbon, when reacted with oxygen to produce carbon dioxide and heat and light. Okay. According to CBSE, heat and light both are produced. Okay, let's come to the next reaction. This is only carbon, this is only coal. If we take methane in the presence of oxygen or burns with oxygen, it again produces carbon dioxide and water with again large amount of heat and light. And this heat and light are the major source of fuel in villages. Again, this is only one carbon compound. If we take 2 or 3 carbon compound, even then we will produce carbon dioxide, water and heat light. Okay, so this is the reaction of combustion. These are only saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons means the carbon having only single bond. These all carbon having single bonds. Single bonded carbon atom burns with a clean flame. While unsaturated means carbon having double or triple bond. डबल और ट्रिपल बॉन्डेड अगर कार्बन होंगे तो वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं बहुत सारे ब्लैक स्मोक के साथ. बहुत काला धुआं निकलता है जब डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम जलते हैं. इसे हम कहते हैं सूटी फ्लेम. अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स प्रोड्यूसेस सूटी फ्लेम. Okay, because of incomplete combustion of carbon. If the carbon compound is incompletely burned in the presence of oxygen, it produces a sooty flame. But if the oxygen is rich or in sufficient quantity, the compound formed is carbon dioxide and water, and it will be a clean flame, clean blue flame. हमारी गैस में भी जब ऐसा होता है, कई बार जब ब्लू कलर की फ्लेम आती है तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा होता है, बट जब येलो कलर की फ्लेम आना शुरू होती है तो समझ जाइए, और हमारे बर्तनों को काला करने लगे तो समझ जाइए कि हमारा जो बर्नर है उसके पोर्स बंद हो गए हैं और उन्हें क्लीन करने की ज़रूरत है. बिल्कुल सेम हमारे घरों में भी देखो ऐसा होता है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घरों में ये चेक करने का. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस chemical property, that is oxidation. What is oxidation? Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. So how we are going to take the oxidation of carbon compounds? Let's hope we can easily understand. Let's take any of the carbon compound. We have used KMNO4, that is alkaline KMNO4 plus heat, or we can use acidified K2Cr2O7, potassium dichromate. KMNO4 is a strong oxidizing agent. Why?
KMNO4 is a strong oxidizing agent. I'll surely let you know. KMNO4, in that manganese is a transition element. ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है. जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, बट अभी मैं बता देती हूँ. फॉर द टाइम बीइंग मैंगनीज इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट एक अकेला ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है ग्रुप थर्ड में जिसके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं. एज फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है. +7 +6 ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है. +7 +6 +5 +4 +3 +2 टिल +1 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंगनीज एग्जिस्ट कर सकता है. जब इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंगनीज एग्जिस्ट कर सकता है मतलब अपने आप को +7 से +6 में भी ले जा सकता है, +5 में भी, +4 में भी, +3 में भी. तो जब अपने आप को जो रिड्यूस कर सकता है वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट्स अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट हैपन्स इज ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा CH3COOH. एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, और जो एक H2 था वो वाटर के साथ आउट हो गया. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ओके, strong oxidizing agent. You should know about that and keep remember it. Third reaction we have to cover up with addition reaction. Addition reaction. What is this addition reaction? Means we can add anything to the double bonded or triple bonded carbon atoms. For example, we have taken ethene. We have already done the IUPAC naming and common names of the carbon and its compounds. Let's talk about only chemical reactions. So this is ethene. 2 carbon is ethane. Double bond with ene लगा देते हैं. तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये रिएक्शन होता है रेनी निकल की प्रेजेंस में. रेनी निकल. सो आपको कमेंट करके बताना है ये रेनी निकल क्या होता है. निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है. और अगेन अगर किसी को नहीं पता कि कैटलिस्ट क्या होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैटलिस्ट क्या होता है. मैं श्योर कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH3, दैट इज़ इथेन. ओके, दिस इज नॉट ओनली अ सिंगल रिएक्शन, आई कैन इवन टेल यू मोर रिएक्शंस रिगार्डिंग दिस. अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन. अगेन इफ वी ऐड हाइड्रोजन, अब यहाँ मुझे 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ताकि मैं इथेन बना सकूँ. तो अगेन रेनी निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, रेनी निकल की प्रेजेंस में. ओके, दैट इज CH3CH3 इथेन. ये रिएक्शन होता कहाँ है यूज़? ये रिएक्शन यूज़ होता है, यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन इज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी. ओके, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं. फोर्थ, लेट्स कम टू द लास्ट रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को हटाकर किसी दूसरे को ऐड करना, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होगा कि कोई भी एक कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं. अगेन क्लोरीन का जो एडिशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. अब कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर ऐड तो हम क्लोरीन कर रहे हैं, बट यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर, और HCl हट जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. किसी एक को हटाकर हमने किसी दूसरे को यहाँ एड अप कर दिया. ओके,
Let's come to a blue box question of NCERT with the chemical properties of carbon compounds. There are two questions. Question आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा. The question number 1 is why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? उन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो इथेनॉल का रिएक्शन है, जो ये इथेनॉल का हमने रिएक्शन किया है, दिस इथेनोइक एसिड बनाने के लिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए है कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया. क्या बनाने के लिए? इथेनोइक एसिड बनाने के लिए. इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है. ठीक है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमने क्या किया है? ऑक्सीजन को ऐड किया है. सो addition of oxygen is called oxidation and removal of hydrogen is also called oxidation. Okay, next question number 2. A mixture of oxygen and ethine is burnt for welding. अब उन्होंने कहा है कि वेल्डिंग करने के लिए इथाइन गैस का यूज़ किया जाता है. हमें पता है वेल्डिंग कैसे होती है, हमने देखा है वेल्डिंग कैसे होती है. आयरन की वेल्डिंग की जाती है. तो वेल्डिंग करने के लिए इथाइन और ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है. कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड? एयर में बहुत सारे और भी गैसेस अवेलेबल हैं, जैसे नाइट्रोजन, वी ऑलरेडी नो दैट इज़ 78%, carbon dioxide is 0.03%, and all the other gases will also react with ethine and pure welding will not take place. So only this reaction occurs in the presence of oxygen for complete combustion and for production of large amount of energy. We have already taken the example of this. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्योर ऑक्सीजन के साथ, तभी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन. ये इसका आंसर.